Friends, welcome to TSN School. Now I'll continue our last lesson, chapter number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कैसे जो नेल्सन मंडेला है वो एक ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के अंदर 3 सेंचुरीज़ के बाद। उसके बाद उन्होंने अपनी शपथ ली और कैसे सब लोग उनका स्वागत कर रहे थे, कैसे सब लोग उनको सल्यूट कर रहे थे, सब उनके फेवर में थे। और उस दिन उस यूनियन के अंदर सारे लोग बिना अपनी जाति के, बिना कलर के, मतलब कोई उनके अंदर भेदभाव नहीं था, सब लोग काफ़ी खुश थे और उस ओकेज़न को सेलिब्रेट कर रहे थे, उस इनोग्रेशन के अंदर इंजॉय कर रहे थे। नाउ लेट्स स्टार्ट. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history in the first decade of the 20th century, a few years after the Builder Anglo-Boer War and before my own birth. The white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of one of the hardest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one and recognized the rights and freedoms of all peoples, regardless of the color of their skin. उद्घाटन वाले दिन मतलब इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा था कि जो 20वीं सदी के जो लोग थे, 20वीं सदी के जो पहले के दशक के लोग थे, वो जो एंग्लो बोर के युद्ध के टाइम की बात उन्होंने बताई है कि ये उनके जन्म से पहले की बात है कि जो सफ़ेद चमड़ी वाले जो लोग थे दक्षिण अफ्रीका के, वो भेदभाव मतलब करते थे लोगों से, काले लोगों से भेदभाव किया जाता था, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था और उन्हें मतलब अपने बराबर भी नहीं खड़े होने देते थे। बट आज के टाइम पे क्या हो रहा था, आज का जो संसार था वो काफ़ी अलग हो गया था और 20वीं सदी के अंतिम दशक तक मतलब ऐसा चेंजेस आ गए थे कि अब एक नया ढांचा बनकर तैयार हुआ था संसार के अंदर। और जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, अब काफ़ी चेंजेस आ गए थे, सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे थे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा था। That day had come about thought the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering from and courage can never be counted or repeated. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices and brought. उसके बाद वो कहते हैं कि उस दिन मुझे याद आ रहा था कि कैसे मतलब हज़ारों लोग जो थे उनके बलिदान दिया था, काफ़ी साहस और तकलीफ़ों के साथ उनका जो अनुमान वो लगा सकते थे कि कैसे उन्होंने अपनी जान की कीमत चुकाई थी। उस दिन उन्हें एहसास हो रहा था कि काश वो लोग भी आज मुझे देख सकते होते और मैं उनका भी धन्यवाद कर पाता और उनके बलिदान के बारे में या मतलब उनके बलिदान की उनको मतलब जो उन्होंने बलिदान दिया था उसके बारे में उनको धन्यवाद दे पाता और उनको वो मुझे आज सुन सकते तो मुझे काफ़ी खुशी होती। द पॉलिसी ऑफ apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from the proud hurt, but the decades of oppressions and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tombos, the Walter Sisles, the chief Luthelius, the Yusuf Decots, the Bream Feisers, the Robert Sobuves of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. But I have always known that its greatest wealth it is its people, finer and
truer than the purest diamonds. उन्होंने बताया कि जो अपार्थाइड है, जो अफ्रीका की जो रंग भांति की जो नीति है, उससे जो लोगों को घाव मिला है, जो मतलब उनके साथ में बुरा व्यवहार हुआ है, उसे वो कभी भूल नहीं सकते। उस घाव को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, परंतु अब जो नई पीढ़ी आ रही है उसके लिए जो वर्ष हमने पहले पुराने जो गुजारे उसके लिए हम चेंजेस जो करेंगे, तो हम उन वर्षों को भूलने की कोशिश करेंगे, हम उन घावों को भरने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और उन्होंने बताया कि जो हमारे जो साहस, बुद्धि और भलाई वाले जो लोग हैं, वो मुझे पता है कि जो हमारी धरती है वो काफ़ी अच्छी है, मिट्टी जो है उसके अंदर एक तरह से मोती है, खनिज से भरपूर हमारी धरती है। परंतु वो कहते हैं कि जो हमारे यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, जो मेहनत से रहते हैं और जो सुंदर भी और शुद्ध हीरो से भी ज़्यादा सच्चे हैं, मतलब उनकी जो मन की सच्चाई है और जो उनके अंदर मेहनत करने का जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। It is from these comrades in the struggle that I learned that the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their life for an idea. I have seen men stand up to attacks and tolerate without breaking, showing a strength and resilience that defeats the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who would conquer the fear. उन्होंने बताया कि जो संघर्ष था, जब हमारा मतलब स्ट्रगल चल रहा था, तो मैंने देखा है कि जो मेरे साथी थे वो कितना साहस के साथ लड़ रहे थे इस चीज़ से। मैंने लेडीज़, पुरुष और बच्चों को भी इतना जोखिम उठाते देखा है कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उस संघर्ष के लिए लड़ाई की और उस संघर्ष में उन्होंने विजय प्राप्त की। मैंने देखा है कि जो पुरुष होते मतलब बिना डटे, बिना मतलब यातनाओं के डटे रहते हैं, चाहे उनके सामने कैसी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कैसी भी उन्हें मतलब उनके सामने बुरा व्यवहार हो या कैसा भी उनके ऊपर अटैक हो, बट उसके सामने वो डटे रहते हैं और अपनी ताकत और हट को हमेशा बनाए रखते हैं, जिसकी वो कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतना साहस उनके अंदर होता है। तो उन्होंने बताया कि मैंने सीखा है कि डर का ना होना ही साहस नहीं होता, परंतु डर पर विजय पाना ही साहस होता है। और वीर जो पुरुष है वो तो इतना है कि वो डरते नहीं है, बल्कि वे भय को जीत लेते, मतलब अपने डर पर जीत प्राप्त कर लेते हैं, अपने डर पर जीत बना लेते हैं। उसे ही मतलब साहसी लोग कहते हैं और उसे सच में कहा जाता है कि सच में ये इंसान क्या है, एकदम परफेक्ट है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कहते कि कोई भी जन्म से रंग और त्वचा या मतलब धर्म के आधार पर उसके साथ नफ़रत नहीं करता है। लोग नफ़रत करना सीख जाते हैं, मतलब बाद में वो चीज़ें सीखते हैं, पहले से जन्म से तो ना पता होता है हमें कि यार ये हमारी कैटेगरी का नहीं है या ये हमारे धर्म का नहीं है, ये सब हमें जन्म पे नहीं पता होता, जन्म के बाद ही हम ये सब चीज़ें सीखते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट अपोजिट। Even in the previous times in the prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. कहते हैं कि मतलब अगर हम चाहें तो हम स्टार्टिंग से प्यार करना हमें सिखाया जा सकता है, क्योंकि जो लव है वो प्राकृतिक रूप से हमारे हृदय के अंदर आता है। तो अगर हम नफ़रत करना सीखेंगे तो हम नफ़रत ही करेंगे, अगर हम प्यार करना सिखाएंगे तो हम प्यार ही करेंगे। उन्होंने बताया कि जेल के अंदर उन्होंने काफ़ी गंभीर समय बिताया है और उनके साथियों को उन्होंने दर्द के अंदर देखा है। उन्होंने काफ़ी मतलब देखा है कि जो गार्ड वगैरह थे उनके साथ कैसे बुरा व्यवहार करते थे, कैसे उनके साथ में उनको मतलब इतना ज़्यादा दर्द देते थे, इतनी सारी यातनाएँ उनके साथ में करते थे कि उनके अंदर से ऐसा फील होता था कि शायद इनके अंदर तो इंसानियत भी नहीं है। और बट कुछ सेकंड के लिए हम सोचे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम अपने ही इंसानों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और उन्हें ऐसी तकलीफ़ें हम क्यों दे रहे हैं। इस बारे में उन्होंने बताया कि आज का जो टाइम होगा वो एकदम चेंज होगा और ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होगा। और अब इस टाइम को हम भुला तो नहीं सकते, बट हम इसमें चेंजेस ज़रूर कर सकते हैं। In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. जो नेल्सन मंडेला है वो बता रहे हैं कि हमारे लाइफ के
हमारी लाइफ में दो मतलब हमारे कर्तव्य होते हैं, दो हमारे लाइफ के कर्तव्य होते हैं, दो ही बाधाएं हमारे साथ होती है कि एक तो हमारे परिवार के लिए होती है, एक माता पिता होती है जिसमें पत्नी बच्चे सब आ जाते हैं, और दूसरा हमारे समुदाय और हमारे देश के लिए हमारी कर्तव्य होते हैं। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of the obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was invariably deprived from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and as a husband. वो बताते हैं कि हमारे लाइफ में दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो बाधाएं होती है। एक बाधा जो होती है वो हमारे परिवार के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारी पत्नी बच्चों के लिए होती है, और दूसरी बाधा किसके लिए होती है? हमारे समुदाय से रिलेटेड होती है, हमारे समाज से रिलेटेड होती है, हमारे देश से रिलेटेड होती है। वो कहते हैं कि एक सभ्य मानव जो होता है, एक जो अच्छा इंसान होता है, वो खुद के अनुसार अपनी खुद के से रिलेटेड जो जिम्मेदारी है वो पूरा करने की योग्यता रखता है। बट वो बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका जो था उसके अंदर वहाँ पर ऐसा करने ही नहीं दिया जाता था लोगों को। क्यों? क्योंकि काले रंग वाले जो लोग थे उनके साथ में दूसरी जो मानवता थी वो ही उनके साथ में बुरा व्यवहार करती थी, उनको दंड दिया जाता था, यहाँ तक कि उनको अलग अलग कर दिया जाता था। अगर कोई भी व्यक्ति काले रंग का जो था, वो कोई भी व्यक्ति जो था अगर खुद से सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के साथ सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता था और अपनी फैमिली के लिए कुछ डिसीज़न लेना चाहता था, तो वो भी उन्हें नहीं लेने दिया जाता था, और जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो उनको आगे बढ़ने ही नहीं देती थी, हमेशा उनके साथ बुरा व्यवहार करती थी। तो इस बारे में वो बता रहे हैं कि ये सब मैंने फ़ील किया है, और अब मेरा टाइम आया कि मैं अपने देश के लोगों की सेवा करूं, और एक साथ साथ मुझे जो मतलब अपने एक बेटे के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में जो मेरी जिम्मेदारियां थी, जिसको निभाने के लिए मुझे रोका गया था, वो भी मैं अब निभाऊं, और अब मैं अपने सारे कर्तव्य जो थे वो मैं पूरा करूँ। आई वॉज़ नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। वो कहते हैं कि मैं आज़ाद की चाह लेकर ही नहीं जन्मा था। आई वॉज़ बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट कुड नो, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast maize under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls, as long as I obeyed my father and obeyed by customs of my tribe. I was not troubled by the laws of man or good. कहते हैं कि मैं आज़ाद की चाह लेकर ही नहीं जन्मा था, मैं आज़ाद पैदा हुआ था, और मैं हर तरह से आज़ाद होना जान सकता था। मतलब मैं चाहता था कि मैं अपनी जो माँ की कुटिया है, जो माँ की घर है, उसके पास दौड़ने के लिए आज़ाद हूँ। मैं अपने गांव से होने वाली जो भी गुज़रने वाली जो नदी है उसमें तैरने के लिए आज़ाद मैं रहूँ। जो मेरा भोजन है, नीचे जो मेरा भोजन पकाने के लिए जो है, और वहाँ मैं अपना भोजन खुद पका सकूँ, ठीक है। और जो बैल जो चल रहे हैं उनकी सवारी करने के लिए मैं आज़ाद हूँ। मतलब वो अपने गाँव की बातें बता रहे हैं कि मैं अपने गाँव में आज़ाद रह सकूँ, मैं अपनी माँ की कुटिया से बाहर आके खेल सकूँ, और मैं अपने खुद का खाना खुद बनाकर खा सकूँ। मतलब खुद के खाने से मतलब जो उनके खाने की इच्छा है, जो भी मतलब उन पर रेस्ट्रिक्शंस जो लगी हुई थी, सब वो दूर हो जाए, और वो अपनी लाइफ जो है बिल्कुल आज़ाद तरीके से जी सके। और वो कहते हैं कि जब तक मैंने अपने फादर की जो आज्ञा है उसको माना है, उनके रीति रिवाज़ों को माना है, तो मुझे पता है कि कैसे भगवान के जो नियम हैं, कैसे एक आदमी के लिए जो नियम है वो परेशान मुझे नहीं करते। बट मैं चाहता हूँ कि मैं एक आज़ाद लाइफ जीऊँ, मतलब एकदम मैं फ्रीडम चाहता हूँ। सो स्टूडेंट्स, नाउ विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।